हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर आरएमओ flashback series. And in today's lecture we will be discussing question number 3rd and question number 4th of year 2003. Both of these questions are good. One is from inequalities and the other one is a very calculative question of combinatorics, right? So before starting the session, let me just give you one information that if you want to get enrolled in either of any of the Olympiad batches, be it NTSC, NSEJS, Maths Olympiad, Physics Olympiad, Chemistry Olympiad, or Astronomy Olympiad, or even if you are preparing for JEE, right, and you want to cover for KVPY, then you should fill this Google form vdnt.in/VOS 2, right. After filling this form, you will get a call from our representative, and he will definitely enroll you in your respective batch preference, right? And one more thing, all these batches are completely free of cost, so you won't have to pay anything for the enrollment, right? So let's start the session. And if you want to get enrolled in RMO and INMO batch, first you should fill that form, or you can directly mail me your these credentials on this email ID. Okay, I'll enroll you to RMO or INMO batch. But for that, you must have IUQM certificate, or you must have cleared pre-RMO in some previous years, right? So let's start the session. So this is question number 3rd of year 2003. The question says that if ABC are three positive real numbers, such that sum of the numbers is 1, then we need to prove that among these three numbers, this and this, there is one which is at most 1/4. कोई एक ऐसा होगा जो 1/4 होगा मैक्सिमम, मतलब 1/4 या उससे छोटा होगा, मतलब मैक्सिमम 1/4 हो सकता है, कोई एक ऐसा नंबर होगा। एंड देयर इज वन विच इज एटलीस्ट 2/9, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जरूर होगा इन तीनों में से जो 2/9 या उससे बड़ा होगा, राइट। तो वी हैव टू प्रूव टू थिंग्स. वन इज दैट अमंग दीज थ्री नंबर्स देयर विल बी वन नंबर जो 1/4 या उससे छोटा होगा डेफिनेटली, ठीक है। एंड देयर विल बी वन नंबर विच इज either मतलब which is greater than or equal to 2/9, right? So let's prove these two parts, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, उसके लिए इवन वी डू नॉट नीड दैट कंडीशन, वी ओनली नीड दैट these are positive real numbers and मतलब these are all are less than 1, okay, ठीक है। Let's consider a into 1 minus a. This is a into 1 minus b, but let's consider a into 1 minus a, ठीक है। We know from the quadratic that this is less than or equal to 1/4. As you can see, the graph of the quadratic will be downward parabola, right? We have 0 and 1 as two of the roots, and its maximum value will be at when a is equal to half, and at a equal to half it is clearly 1/4, right? So a into 1 minus a, this is less than or equal to 1/4. Similarly you can say b into 1 minus b, ये भी 1/4 या उससे छोटा होगा. Similarly c into 1 minus c, ये भी 1/4 या उससे छोटा होगा. Now if you multiply, since all of these things are positive, because ABC positive real number थे and उनका sum 1 था, तो 1 minus a must be positive, right? So if you product these, if you multiply all these things, what you will get, a into b into c into 1 minus a 1 minus b into 1 minus c, that will be less than or equal to 1/4 cubed, right? And in fact this product is same which is obtained by multiplying these three quantities, because these three quantities are a into 1 minus b, b into 1 minus c, c into 1 minus a. But if you multiply all these three things, you'll get this thing, okay? Now since the product of these things is less than or equal to 1/4 cube, so all these numbers cannot be greater than what, 1/4, because if all these numbers are greater than 1/4, then their product must be greater than 1/4 cube. But since product is less than or equal to 1/4 cube, so there must be one number which is maximum 1/4, जो maximum 1/4 होगा या उससे छोटा होगा, right? So this is the first part of the inequality जो हमने prove करना था. Now let's move to the second part, ठीक है, in which we have to prove that one number must be at least 2/9, है ना? तो मतलब कोई एक नंबर होगा जो 2/9 या उससे बड़ा होगा, ऐसा जरूर होगा, ठीक है। तो इसके लिए लेट्स add these three quantities, this
this. Let's add these three numbers. What we will get? A plus B plus C minus AB plus BC plus CA, right? And we know A plus B plus C, वो given question में हमें condition था ना, that was 1. So this will come out to be 1 minus AB plus BC plus CA. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा, है ना? ये हमारे पास रिलेशन आ गया. अब जैसे ही AB plus BC plus CA आता है तो एक कंडीशन शायद दिमाग में आती है कि एक बड़ी स्टैंडर्ड सी इनइक्वालिटी है, शायद सबको पता होगा. A plus B plus C whole squared that is always greater than or equal to 3 times AB plus BC plus CA. कैसे? You can prove it, है ना? This is basically the simplified version of A minus B squared plus B minus C squared, right? Plus C minus A squared. तीन होल स्क्वायर्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, you'll get this. ठीक है, right? So this is a standard inequality which you should know, and proof of this inequality can be derived from this, right? Just open up the whole square here and open up the whole square here, and you'll get both the terms as equal, right? So now यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं? Since A plus B plus C is 1, so we can say this 1 square, which is 1, is greater than or equal to 3 times AB plus BC plus CA. Or you can see that this AB plus BC plus CA यहीं से है ना, let's take 3 in the, let's cross multiply by 3, तो that should be less than or equal to 1 by 3. तो 1 minus this, तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से what we can claim, यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज हम claim कर सकते हैं, that this implies 1 minus AB plus BC plus CA. Now since this is always less than or equal to 1 by 3, so if we are subtracting this, so we can say that this is always greater than or equal to 2 by, ये हमेशा 2 by 3 या उससे बड़ा होगा. क्या चीज? 1 minus AB plus BC plus CA. और ये क्या था? ये हमारा इन तीन नंबर्स का सम था, है ना? We have added these three numbers. अब सोच के देखो, अगर हर नंबर 2 by 9 से छोटा होता है, if each number is less than 2 by 9, then their sum must be less than 2 by 3. बट अपना सम क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 by 3. तो कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 2 by 3 का 1/3 यानी कि 2 by 9, है ना? जो 2 by 9 या उससे बड़ा होगा. एक नंबर एटलीस्ट, एक नंबर ऐसा जरूर होगा विच इज एटलीस्ट 2 by 9, जो कम से कम 2 by 9 या उससे बड़ा होगा. इनफैक्ट 2 by 9 भी तब होगा जब मतलब एक नंबर 2 by 9 हो, एक नंबर 2 by 9 से बड़ा हो, या एक नंबर 2 by 9 से छोटा हो, या तीनों ही 2 by 9. ठीक है, क्लियर? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. एक पार्ट में हमें प्रूव करना था कि एक नंबर ऐसा होगा जो मैक्सिमम 1/4 होगा, 1/4 या उससे छोटा होगा. एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 2 by 9 या उससे बड़ा होगा. एंड वी हैव प्रूव्ड दैट, राइट? तो दिस वाज द क्वेश्चन 3rd of 2003. अभी हम क्वेश्चन 4th पे चलते हैं. ये कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, बट यस दिस इज अ वेरी कैलकुलेटिव एंड अ लिटिल लेंथी क्वेश्चन. क्वेश्चन में कंसेप्चुअली कुछ ज्यादा नहीं है, काफी सारे केसेस बनेंगे, बस आपको वो थोड़े से ध्यान से करने हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं एक रिजल्ट आपको बताना चाहूंगा जो काफी बच्चों ने कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ा होगा. बेसिकली टॉपिक होता है या तो बैगर्स कॉइन मेथड से आप लोगों ने पढ़ा होगा, या नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसको हम इक्वेशन में ब्रेक कर देते हैं. जैसे x plus y plus z plus t, लेट्स से एक इक्वेशन है एंड दिस इज लेट्स से इक्वल्स टू 50. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके लिए कितना आता था, या लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू n, ठीक है, वेयर x y z t पर कंडीशन होता था कि दिस इज होल नंबर्स, दिस बिलोंग्स टू होल नंबर्स. तो इसका आंसर आता था n plus r minus 1, वेयर r इज दिस नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो इस केस में 4 है ना, c r minus 1, ठीक है. दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के नाम से आपने पढ़ा होगा, या फिर है ना बैगर कॉइन मेथड के थ्रू इसको समझाया जाता है, राइट? तो विल बी डायरेक्टली यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब बेसिकली होल नंबर्स, है ना, satisfying the condition कि x should be less than or equal to y, should be less than or equal to z, and second condition is x plus y plus z less than or equal to 100. ठीक है, तो पहले तो है ना हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, ये कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है. अगर लेट्स से फर्स्ट कंडीशन नहीं होती,
मतलब लेट्स अज्यूम कि कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी होल नंबर हो सकते हैं बट उनका सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते होते हैं? लेट्स इंट्रोड्यूस वन मोर वेरिएबल, लेट्स से टी, सच दैट ये अब 100 या 100 से छोटा होगा, है ना? तो अगर 100 से छोटा है तो बाकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है 100 बनाने के लिए वो हम टी को दे देंगे, सच दैट देयर सम इज 100। तो अब व्हाट इफ अगर एक्स वाई जेड का सम ऑलरेडी 100 है तो टी जीरो हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से व्हाट यू कैन क्लेम कि एक्स वाई जेड एंड टी, दिस ऑलरेडी बिलोंग्स टू होल नंबर्स, है ना? बिकॉज एक्स भी जीरो हो सकता है, वाई भी, जेड भी, एंड इनफैक्ट टी भी जीरो हो सकता है। अब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस तरीके से कितना आएगा? 100 plus 4 minus 1 C4 minus 1 which is 103 C3। ठीक है, तो सिर्फ अगर सेकंड कंडीशन होता, मतलब इफ फर्स्ट कंडीशन ना हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स ऑफ एक्स वाई जेड satisfying this inequality or you can say satisfying this equality is 103 C3। ठीक है, these are the total ways। ठीक है, but we have one more condition कि भाई x should also be less than or equal to y should also be less than or equal to z। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बिकॉज यहाँ पर तो हमारे ये जो टोटल 103 C3 वेज आए हैं, इसमें हो सकता है किसी में x y से बड़ा हो, है ना, किसी में x z से बड़ा हो, किसी में x z की इक्वल और y की इक्वल ना हो, बट मतलब इसमें काफी सारे अनवांटेड वेज हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो अब इस केस में व्हाट वी विल डू, मैं आपको पहले अप्रोच बता देता हूँ, फिर हम एक एक करके पार्ट्स को लेंगे। तो हम टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल वेज करेंगे। अनफेवरेबल वेज का सिंपल सा मतलब है जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। इसमें टोटल वेज तो हमारे ये बन जाते हैं 103 C3। बट अब देखो अनफेवरेबल वेज निकालने के भी काफी अलग अलग से तरीके हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिस्टिंक्ट वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड व्हेन x is not equal to y is not equal to z। ठीक है, ये वाले केसेस हम निकालेंगे। और हम क्या निकालेंगे, एक हम केस निकालेंगे व्हेन x is equals to y equals to z, ये वाला केस निकालेंगे। क्या क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। फिर हम एक केस निकालेंगे व्हेन any two of them are equal। ठीक है, अब ये चीज ध्यान से समझना। फिर व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व व्हेन x is equal to y but z is greater than y। ठीक है, फिर हम केस निकालेंगे व्हेन x is less than y but y is equals to z। these are the cases that we will solve। ठीक है, अब फाइनली क्या करेंगे, देखो पहले तो ये चीज देखो, व्हेन x is not equal to y is not equal to z। ठीक है, बेसिकली जब x y और z तीनों अलग अलग है, ठीक है, वो वाले हम केस निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ये ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसे सोल्व होगा वो मैं बता देता हूँ। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द इंक, लेट्स राइट विद दिस इंक। टोटल माइनस सेकेंड पार्ट माइनस थर्ड पार्ट। देखो टोटल में कौन से वेज हैं, टोटल में वो सारे वेज होंगे जिसमें या तो एक्स वाई के इक्वल है, मतलब तीनों में से कोई भी दो इक्वल है तब भी टोटल में आएंगे, तीनों अगर अलग अलग है तब भी आएंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए व्हाट वी विल डू, टोटल में से दैट इज 103 C3 में से, इस पार्ट में से वी विल सब्ट्रैक्ट सेकंड पार्ट जब तीनों इक्वल है, एंड वी विल आल्सो सब्ट्रैक्ट व्हेन एनी टू ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है, तो ये सब जब हम दोनों सेकंड और थर्ड पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल गेट वन फर्स्ट पार्ट, है ना, व्हेन x is not equal to y which and is not equal to z। ठीक है, अब उसमें भी कैन यू टेल मी इसमें फर्दर, अगर अच्छा x y z डिस्टिंक्ट है वो आपस में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकेंगे, 6 फैक्टोरियल तरीके से, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज से, है ना। तो अगर मैं इसको for x is less than y is less than z, what I need to do, अगर मुझे चाहिए कि x y से छोटा हो y z से छोटा हो, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में मैंने वो सारे वेज निकाले जब एक्स वाई जेड अलग अलग है, तो उसमें कुछ वो वेज भी आएंगे जब एक्स वाई से बड़ा हुआ होगा या वाई जेड से बड़ा होगा। बट मुझे स्ट्रिक्टली अगर एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड चाहिए बिकॉज ऑफ मेरे फर्स्ट पार्ट में जो कंडीशन है उसके लिए, व्हाट आई हैव टू डू,
मुझे जो भी फर्स्ट पार्ट में रिजल्ट आएगा उसको मुझे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस विल गिव मी नंबर ऑफ वेज फॉर दिस थिंग. ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं, आपको धीरे धीरे चीजें पता लगती रहेगी. सबसे पहले तो ये देखो, व्हेन x इज इक्वल टू y इक्वल टू z, ये सबसे इजी है सेकंड केस निकालना. व्हेन x और y और z तीनों बराबर हो तो क्या क्या हो सकता है, तीनों को 0 दे दो, या तीनों को 1 दे दो, या 2 दे दो, या 3 दे दो. मैक्सिमम कहां तक दे पाओगे, 33 तक. तो व्हेन x इज इक्वल टू y इक्वल टू z, वी हैव हाउ मेनी वेज, फ्रॉम 0 टू 33, है ना. तो दे आर 34 वेज. These are 34 ways. पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए. These are 34 ways, right? Now we will see when any two of them are equal. ठीक है, ये वाले कितने ways होंगे वो हम देखते हैं. And let's solve it on the next slide. When any two of them are equal and we are यहाँ पे तो inequality थी, तो अपना new condition जो है, let me write it with red. हमारी जो new equation बन जाती है वो बन जाती है x plus y plus z plus t equals to 100. And let's say any two of them, let's say any two, let's say x equal to y. ठीक है, but that is not equal to the third variable which is z. t से हमें कोई लेना देना ही नहीं है. t is just our dummy variable जो हमने इंट्रोड्यूस किया इक्वालिटी बनाने के लिए. ठीक है, so now our equation will get converted to 2x plus z plus t equals to 100. ठीक है, ये हमारी नई इक्वेशन आ गई. अब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, है ना. हम इसमें देखेंगे कि कब कैसे ये चीजें एग्जीक्यूट होती है. अब हमारी कंडीशन क्या है, बस z कुछ भी हो सकता है, बट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू x और y. मतलब z कैन बी लेस देन x, कैन बी लेस देन y. ऑब्वियसली हम अभी फर्स्ट कंडीशन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ वो वेज निकाल रहे हैं जब कोई भी दो इक्वल होंगे, और तीसरा उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. अभी हम फर्स्ट वेग की तरफ नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस. व्हेन 2x plus z plus t equals to 100. ठीक है, देखो अब इसको हमें मैनुअली थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा. व्हेन x is equal to 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, देन हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर फॉर z. z can vary from 1 to up to 100. So it will have how many options? It will have 100 options. I guess ये सबको क्लियर हो रहा है. ठीक है, when when x is 0, then z will have 100 options. ठीक है, it can vary from anything from 1 to up to this thing, 1 to up to 100, है ना. Now when x is equal to 1, जब x की वैल्यू 1 होगी, the equation is 2x plus the equation will be z plus t equals to 98. ठीक है, because x equal to 1 तो 2x will be 2. अब z should not be equal to x, है ना. तो z हम 1 नहीं ले सकते, but from 0 to 98 how many options we will have? From 0 to 98 we will have 99 options, but we cannot take 1, so in total we will have 98 options. ठीक है, similarly when x equals to 2, it will be 94, it will be 4, so z plus t should be 96. From 0 to 96 there are 97 options, but we cannot take x equal to 2, so it will be 96 plus and so on. ठीक है, ये चीज हम आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, बट अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब x इक्वल टू, लेट्स से हम इसको बढ़ाते बढ़ाते ले गए हैं, x इक्वल्स टू कहाँ तक लेकर जाए, 34 33. ठीक है, when x is equals to 33, ठीक है, then 2x is 66 and z can be anything from 0 to 34, right? So there are 35 options, but x cannot be what? X cannot be this 33. So in all we have 34 options, है ना. Plus अब ध्यान से देखो, when x is 34, तो 2x will be 68. तो z plus t should be what? Z plus t should be 32. बट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब एक नया कंसर्न क्या था, अब हम ऑलरेडी 34 को क्रॉस कर चुके. देखो पहले सब वेज में हम 1 हटा रहे थे 0 to 98 में, 2 हटा रहे थे. अब 30, जब x को 33 रखा तो 0 से 34 में देयर इज अ नंबर 33, है ना, जो हमें हटाना पड़ा. दैट्स व्हाई वी आर लेफ्ट विद 34 ऑप्शंस. बट जब when x is 34, तो y z plus t हमारा कितना बनता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, 32. और क्लियरली z को मैं 0 से 32 तक कुछ भी रखूं तो उसमें 34 नहीं आएगा, तो वो पर्टिकुलर वे हटाने की जरूरत नहीं हुई. तो यहाँ पर काफी बच्चों ने गलती क्या कर दी थी, इसको 34 प्लस एंड सो ऑन 32 30 30 28 एंड सो ऑन टिल 2 तक ले गए थे, बट वो गलत है, क्योंकि 34 के बाद वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 33, है ना. प्लस when x is equal to 35,
तो 0 to 30 देयर विल बी 31 ऑप्शंस, है ना. सिमिलरली प्लस एंड सो ऑन. अब यहाँ पर ऑड नंबर चल रहे हैं, 29 प्लस एंड सो ऑन, हाउ मच टिल 1. व्हेन 1 कब आएगा, जब x इक्वल टू 50 हो. ठीक है. तो लेट्स ऐड दीज नंबर्स, है ना. इन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा है ना, ये अलग एपी है, ये अलग एपी है, या फिर दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट 17 ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना. इसको आप ऐड अप कर सकते हो एंड दैट कम्स आउट टू बी योर 2567. दिस कम्स आउट टू बी 2567. ठीक है. जब हमने पर्टिकुलर केस क्या लिया, व्हेन x इक्वल टू y विच इज नॉट इक्वल टू z. सिमिलरली क्या हो सकता था, x इक्वल टू z विच इज नॉट इक्वल टू y, उसके लिए भी सेम केस आएंगे. और y इक्वल टू z ये हो सकता था, y इक्वल टू z विच इज नॉट इक्वल टू x. तो देयर आर इन टोटल 3 पॉसिबिलिटीज. तो total ways in which x is not equal to y is not equal to z, they will be simply, they are nothing but 2567 multiplied by 3, right, and that comes out to be 7701. ठीक है. ठीक है. तो अगर हम लास्ट स्लाइड पर आते हैं, तो टोटल वेज जब x y और z इक्वल नहीं थे, यानी कि टोटल माइनस 2. ओके, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड व्हेन टू ऑफ देम आर इक्वल. ओके, व्हेन टू ऑफ देम आर इक्वल, this is how much, when two of any two of them are equal, this is 7, कितना 7701 था ना. हाँ, 7701. this is number of ways. Let's write it with our this color, 7701. These are the number of ways when any two of them are equal. ठीक है. So what will be when x is not equal to y is not equal to z, ये अब कितना होगा, total minus 2 minus 3. total मतलब, let's calculate this first. When x is not equal to y equal to z, total is our 103c3, है ना. तो first part is actually equal to 103c3 minus 2 which is 34 minus 7701. This is what first part is. ठीक है. And that comes out to be, ये आता है 28186. You can calculate 103c3, है ना. So that comes out to be 28186. Right. Now this is what, this is the ways, sorry, this doesn't come out to be 28186. This comes out to be 17685. Okay. All right. This is when x is not equal to y is not equal to z. But again, जो मैंने आपको बोला था, हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारे केस में, x अपने जब डिस्टिंक्ट वाले केसेस जब हम लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वी विल रिक्वायर ओनली वन पॉसिबिलिटी व्हेन x इज लेस देन y व्हिच इज लेस देन z. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी रिक्वायर आउट ऑफ दिस. बट अब इस फर्स्ट वाले पार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज कवर हो रही होंगी, लेट मी जस्ट इरेज दिस. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे अगर आपको ये चीज ध्यान होगी, टोटल माइनस 2 माइनस 3 ये तो हमने निकाल लिया, बट इसमें फर्दर फॉर x लेस देन y लेस देन z के लिए व्हाट वी नीड, ये जो फर्स्ट पार्ट में आया, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक है. why 3 फैक्टोरियल? because x y and z they can arrange in between themselves by 3 फैक्टोरियल ways, right. तो अब उनको अलग अलग करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें मतलब हर एक वे के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे लेट्स से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 10 है एंड z लेट्स से 30 है. लेट्स अज्यूम दीज आर वन सेट, है ना. तो उसमें x1 y10 z30 ये भी हो सकता है, x10 y30 z1 भी हो सकता है, एंड दे बेसिकली दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 3 फैक्टोरियल वेज. बट आउट ऑफ दीज 6 वेज वी रिक्वायर ओनली वन वे. कौन सा वे होगा? जो सबसे छोटे वाला नंबर है दैट शुड बी x, सेकंड नंबर पे y, थर्ड नंबर पे z. तो for this thing we need to divide this by 3 factorial. So for x less than y less than z, what should be the answer? This thing divide by 6 factorial, 3 factorial. 103c3 minus 34 minus 7701. If we divide it by 6, then what we will get? We get actually 28186. Yes. Now this value is 28186. Okay. So these are the distinct ways that we were looking for. ठीक है. अब हम एक बार क्वेश्चन पे आते हैं फिर से. अब अगर आप ध्यान से देखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 100 था, x लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू z था. ठीक है. अब हमें नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए थे. देखो अब इसमें ना दो मतलब कौन से केसेस होंगे. फर्स्ट होगा व्हेन x इज लेस देन y लेस देन z, जब सारे अलग अलग हो.
जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला नंबर कैलकुलेट किया। ठीक, ये वही तो था जब हमने टोटल डिस्टिंक्ट को 6 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये वेज आते थे, दीज आर 2 8 1 8 6। ठीक है, ये हमारे फेवरेबल वेज है। और कौन से, व्हेन x इज इक्वल टू y इक्वल टू z, वो भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं ना जब तीनों इक्वल हो। ये अगर आपको ध्यान हो, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिए थे, देवर 34 वेज, है ना। तो लेट्स राइट देम एज दे आर 34 वेज। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, देखो ये भी हमारा फेवरेबल वेज है, व्हेन x इक्वल टू y बट दैट इज लेस देन z। तो थर्ड वे वी नीड टू कैलकुलेट व्हेन x इक्वल टू y but that is less than z, and also fourth way we also need to calculate when x is less than y but y is equal to z. So what we are left with, we just need to calculate these two ways। ठीक है, यहाँ से जितने भी नंबर ऑफ वेज आएंगे, what will be the final answer, just add these four things, that will give you the final answer। ठीक है, so now let's calculate third and fourth। All right, in third what we have done, x, okay, third, yes, x equal to y, we are considering the third case when x is equals to y but that is less than z। ठीक है, what is our condition, x plus y plus z plus t, है ना। So when x equal to y, that will become 2x plus z plus t equals to 100। अब नाउ यू में आर्ग्यू, आपको शायद आर्ग्यू आप कर सकते हो कि सर ये वे तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे, ये हमने यहाँ पर यही चीज तो कैलकुलेट की थी। नहीं, यहाँ पर क्या था, x इक्वल टू वाई था बट दैट वाज नॉट इक्वल टू z, वो z के इक्वल नहीं था। z उससे छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था, हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट की थी, बट अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें z स्ट्रिक्टली बड़ा चाहिए। तो वो एक अलग केस था, ये एक अलग केस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेट करते हैं, अगेन हम ब्रूट फोर्स से ही करेंगे, मतलब मैनुअली वेज को काउंट करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं, नाउ z कैन वेरी फ्रॉम 1 टू अप टू 100। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउ मेनी वेज दे विल बी, 100 plus, now when x equal to 1, so this is 2, so z plus t is 98। Now x will vary from, since z has to be greater than x, so z will vary from 2 to up to 98, right? So how many ways it will have, it will have 97 ways। Similarly, when x is 3, when x is 3, so z will vary from 4 to up to, now if it's 3, so this is 3 into 2 6, no sorry, x equal to 2 हमने skip कर दिया, when x equal to 2 तो z will vary from 3 to up to 96, right? तो 3 to 96 how many ways are there, 94 ways are there। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एक चीज, क्या चीज इंपॉर्टेंट, क्या चीज हो रही है, ये 3 का डिफरेंस चल रहा है, राइट। सो एज यू कैन सी व्हेन x इज लेट्स से 33, ठीक है, तो दिस इज z plus t, z should be greater than 33, तो z should be equal to 34 only। ठीक है, तो there is only one scenario। ठीक है, तो till 1 we need to add this, these are how many terms, 34 terms, है ना। तो 34, this is a simple AP, 34 into 101 by 2। ठीक है, so this is nothing but this is 101 into 17 and that comes out to be 1717, right? So these are the ways when x equal to y but it is less than z। ठीक है, so this is 1717 that we will be adding in this thing, so I'll also write it as 1717। ठीक है, all right, now let's do this last case when x is less than y but is equal to z, when x is less than y but equal to z। Now in that scenario what will be the equation, it will be x plus 2z plus t, and that is equals to what, that is equal to 100। Again we will calculate it by brute force, uh, if z equal to 0 then there is no possibility because x has to be less than z, है ना, तो 0 से छोटा नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, and we cannot take it to be 0 because we are interested only in lesser values। ठीक है, now if z is 1, so x will have only one option, 0। now when z is 2, so x will have only two options, 0 and 1। now when z is 3, then x will have only option 1
0 1 and 2, तो it will have 3 ऑप्शन. Now you can see कि भाई ये तो 1 2 3 एक एक करके हो रहा है. बेसिकली z से लेसर वैल्यू चाहिए होंगी, ठीक है, बट सम शुड नॉट एक्सीड 100, ठीक है. तो इफ वी टॉक अबाउट 33 तक बिल्कुल सही चलेगा, बिकॉज इफ z is equal to 33, 2z will be 66 and x 32, 0 से 32 तक कुछ भी हो सकता है, that will be perfectly fine. And how many options they were? They will be 33 options, right? 0 to 32. But now when z is equal to 34, है ना, अब ऐसा नहीं है कि x 33 तक जा सकता है, because now the equation is x plus t should be equal to, okay, 32, है ना. तो basically x now can go till 32 only, ठीक है, maximum x 32 तक जा सकता है. तो 0 to 32 we will have 33 options, ठीक है. Now when z is 35, so x plus t should be equal to 30, right? Now it will have 0 to 30, 31 options. Similarly, and so on. When z is equals to, let's say, 50, then x have only one option, which is 0. So this will go till 1. Now we can calculate this. This is sum of first 17 natural numbers, and this part is n into n plus 1. Oops. Oh, sorry, 33. This is n into n plus 1 by 2, right? So that comes out to be 33 into 17, right? And what is this? This is sum of first 17 odd natural numbers, okay? This part, itna sa part will be equal to 17 square, okay? So in total, if we add these two things, what we will get, 33 into 17 plus 17 squared, and that is nothing but 17 into 50, and that is 850, right? So this part is 850. So what will be the final answer? Final answer. Final answer will be 28186, plus 34 ways plus 17 ways plus 850 ways, and that comes out to be 30787. Oops. So as you can see, भाई, this is a very calculative question. बहुत सारे cases थे, है ना. इसको हम डायरेक्टली और भी brute force method से कर सकते हैं, but again मतलब that will be of the similar length. So this is the, I guess, the lengthiest question as far as RMO level is concerned, है ना. So that's it from today's session, guys. Today we have discussed this question of year 2003, and in the next lecture we will be discussing next two questions of year 2003, right? So till then, take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.